हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। तो पहले हमने किया था बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके करते हैं और सेकंड मेथड था बाय रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंट मेथड्स हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन होता क्या है? ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज ए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be its solution or integral. Any function which satisfies the given partial differential equation is known as its solution or its integral भी कहते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट सॉल्यूशन, सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड जनरल सॉल्यूशन एंड देन सिंगुलर सॉल्यूशन। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, इफ एफ एक्स वाई जेड पी क्यू वेयर एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू वेयर पी इज करली z by curly x and q is curly z by curly y, then this is our partial differential equation which is satisfied by the relation fxyz a b equal to 0 where a and b are arbitrary constants. Then this function which contains as many arbitrary constant as there are independent variable in partial differential equation is called complete solution. That means if number of arbitrary constant is equal to the number of independent variable in the given partial differential equation, then that function which satisfies the given partial differential equation and containing exactly same number of arbitrary constant as number of independent variable is called complete solution. Next is particular solution. Particular solution is a solution obtained by giving the particular value to the arbitrary constant in the general equation. If we assign particular values to the arbitrary constant in the complete solution, then solution obtained is called a particular solution of the given partial differential equation. Next, general solution. Let fxyz a b equal to 0 is the complete solution of partial differential equation fxyz pq equal to 0. In this solution, if b is a function, arbitrary function phi of a, that means the arbitrary constants are related by this relation where b is equal to phi of a, then replacing b by phi of a, we get fxyz a phi a equal to 0. This represents one of the family of surfaces represented by fxyz ab equal to 0. The relation between x, y and z obtained by eliminating arbitrary constant a between the इक्वेशंस। अब आपके पास जो b है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? फाई ऑफ a से। अब जो ये रिलेशन आया हमारे पास एफ एक्स वाई जेड ए फाई ए इक्वल टू 0, इसको यूज करेंगे, हमें a को एलिमिनेट करना है। देन दिस इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज करली एफ बाई करली ए इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम a को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा, जो रिलेशन बचेगा वो किस में होगा? एफ एक्स वाई और जेड में, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि दैट प्रोवाइड सेटिस्फाइज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जो भी रिजल्ट आपका आएगा एक्स वाई और जेड में जो भी रिलेशन आएगा, जब हम एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट ए को बिटवीन द इक्वेशंस एफ एक्स वाई जेड ए फाई ए इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली ए इक्वल टू 0, then that relation which satisfies this equation, then that is general solution of this partial differential equation. Next आपका singular solution. Let f x y z a b equal to 0
be the complete solution of partial differential equation fx, y, z, pq equal to 0. Then relation between x, y and z obtained by eliminating arbitrary constants e and b. अब आपको दो एलिमिनेट करने हैं तो आपके पास इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? 3. और वो 3 कहाँ से आएंगी? वन इज एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन. देन सेकेंड इज करली एफ बाय करली ए इक्वल टू 0. जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हम उसको विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो सेकंड रिलेशन यहाँ से आएगा. एंड थर्ड इज करली एफ बाय करली बी इक्वल टू 0. अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को क्या करना है? एलिमिनेट. और जो भी रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो क्या होगा? रिलेशन एक्स वाई और जेड में, और वो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0. कंडीशन यहाँ भी वही है, प्रोवाइडेड दिस रिलेशन सेटिस्फाइज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमें पता है कि जो भी रिलेशन एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, कर ली एफ बाई कर ली ए इक्वल टू 0 और कर ली एफ बाई कर ली बी इक्वल टू 0 में से ए और बी को एलिमिनेट करके आता है, वो क्या कहलाता है? इसका एनवलप. किसका? एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 का. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या होता है? एनवलप. नेक्स्ट आपका मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर, उनको सोल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द इक्वेशन. तो सबसे पहला आता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन. कुछ एक हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं बाय डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल कीपिंग द अदर एज द कांस्टेंट. यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो जो जिस भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, सम आर्बिट्रेरी फंक्शन, नॉट ए कांस्टेंट बल्कि ए फंक्शन ऑफ arbitrary function of another variable which we kept as constant. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन हो जैसे करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी कोस एक्स. इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली क्या सोल्व कर सकते हैं? बाय इंटीग्रेशन. क्या करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज करली बाई करली एक्स ऑफ करली यू बाई करली टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी कोस एक्स. अब हम इसको क्या करना है? यहाँ पे u का जो डिफ्रेंशिएशन है वो पहले विद रिस्पेक्ट टू t है और फिर विद रिस्पेक्ट टू x है. तो हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं और t को क्या रखेंगे? कांस्टेंट. देन वी गेट करली u बाई करली t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रखना है? सम रैंडम फंक्शन और सम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ t, that is phi of t. Again integrating this with respect to t, तो करली u बाय करली t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज u इक्वल टू ई रेज टू पर माइनस टी का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई रेज टू पर माइनस टी साइन एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे x कैसे रख रहे हैं हम? कांस्टेंट. प्लस फाई टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सम रैंडम फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट. एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरह से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है आपकी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन. ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज ऑफ द फॉर्म PP plus QQ equal to R, where P, Q and R are functions of x, y and z is called Lagrange's linear equation. Solution of Lagrange's linear equation. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हम कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आर्बिट्रेरी फंक्शन u और v को एलिमिनेट करके बनाते हैं, जहाँ पे आपका रिलेशन क्या दिया है? एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0 वेन u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, y, z. अगर इस रिलेशन में हम u और v को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म की आती है PP प्लस QQ इक्वल टू R विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ Lagrange's linear equation.
जहाँ पे कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R रिप्रेजेंट्स P इज करली U बाय करली Y इंटू करली V बाय करली Z माइनस करली U बाय करली Z इंटू करली V बाय करली Y. Q is curly U by curly Z, curly V by curly X minus curly U by curly X, curly V by curly Z. And R is curly U by curly X, curly V by curly Y minus curly U by curly Y, curly V by curly X. Therefore f of u v इक्वल टू 0. यहाँ से हमने क्या किया, f of u v इक्वल टू 0 से u और v को एलिमिनेट करके हमने ये इक्वेशन बनाई है. दैट मीन्स ये फंक्शन f of u v इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसी से तो बनी है ना. तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. f of u v इक्वल टू 0 इस वन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन. दैट मीन्स जो आपकी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, f of u v इक्वल टू 0. अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, u और v को. ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे. मान लीजिए u और v है, वो क्या है, u विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू a के बराबर ले लेते हैं हम, और v एक्स वाई जेड इक्वल टू b के बराबर लेते हैं. तो डिफ्रेंशिएट कीजिए. दिस इज 2, दिस इज 3. डिफ्रेंशिएटिंग 2 and 3 वी गेट करली u बाय करली x dx प्लस करली u बाय करली y dy प्लस करली u बाय करली z dz इक्वल टू 0 एंड करली v बाय करली x dx प्लस करली v बाय करली y dy प्लस करली v बाय करली z dz इक्वल टू 0. अब जो दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, dx बाय करली u बाय करली y इंटू करली v बाय करली z माइनस करली u बाय करली z इंटू करली v बाय करली y इज इक्वल टू dy बाय करली u बाय करली z करली v बाय करली x माइनस करली u बाय करली x करली v बाय करली z इक्वल टू dz बाय करली u बाय करली x करली v बाय करली y माइनस करली u बाय करली y करली v बाय करली x. दैट इज dx. दिस इज p जो हमें ऊपर किया है अभी. दिस इज dy बाय q एंड दिस इज dz बाय r. तो आपके dx बाय p, dy बाय q, dz बाय r. टेक दिस इक्वेशन 4. दैट मीन्स अगर हम u को u इज इक्वल टू a और v इक्वल टू b लेके चलें, तो u इक्वल टू a और v इक्वल टू b है, वो आपकी इस इक्वेशन 4 को क्या करते हैं, सेटिस्फाई. तो अब हमें 4 जो है उसको सोल्व करना है. किसके लिए, u इक्वल टू a के लिए, v इक्वल टू b के लिए. तो सॉल्यूशन ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, दैट इज लेग्रांजेस इक्वेशन है, उसको हम कैसे दे सकते हैं, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0 where u equal to a and v equal to b can be obtained by solving this equation 4. और इस 4 को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन और लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन. नेक्स्ट अब आपका आता है स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लैग्रांजेस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे. तो उसका फर्स्ट स्टेप आपका आएगा फाइंड पी क्यू आर. पी क्यू आर को फाइंड करना है, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर. क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के साथ, तो जो आपके पास पी क्यू और आर की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट आपको एक्सिलरी इक्वेशंस लिखनी है. वो कैसे लिखनी है, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर. एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद इस एक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सोल्व. 2 सॉल्यूशन निकालने इस एक्सिलरी इक्वेशन के. वन सॉल्यूशन इज u इक्वल टू a एंड अदर सॉल्यूशन टेक एज v इक्वल टू b. ये जो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, इनसे हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे लैग्रांजेस इक्वेशन का. वो क्या हो जाएगा, f ऑफ u v इक्वल टू 0 और f ऑफ u इक्वल टू v. तो इस तरह से आपके ये 4 स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम गिवन लैग्रांजेस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. Thank you.